السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایم اے عربک کا ایگزام ہے اور آج کا ڈیٹ ہے 31 جولائی 2021 سنیچر سیٹرڈے۔ یہ آپ کے سامنے جو دکھ رہا ہے انٹرنس ایگزام 2016، یہ 2016 کا انٹرنس ایگزام کا جو ہے کوشچن پیپر ہے، پریویس کوشچن پیپر۔ تو اس پیپر کو میں آج حل کرا دیتا ہوں۔ آج ایگزام ہے، کچھ بچے جائیں گے تو اگر دیکھ لے 5 منٹ 10 منٹ لگا کے اس کو دیکھ لے، کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ اہم چیز اور اہم ضرورت ہے وہ ہے آپ کو بال پین لینے جانا ہے۔ بلو یا بلیک سے مطلب نہیں، بلو اور بلیک ہونی چاہیے، بال پین ہونی چاہیے صرف۔ اور باقی اس کوشچن یا آنسر شیٹ یا او ایم آر شیٹ جو آپ کو دیا جائے گا اس میں آپ کو اپنا نام نہیں لکھنا ہے بلکہ رول نمبر وغیرہ لکھنا ہے۔ خیر، تو چلتے ہیں، اب شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا سوال ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کم ولایتاً فی الہند، کہ ہندوستان میں کتنے ریاست ہے، کتنے صوبے ہیں، کتنے اسٹیٹ ہیں۔ تو یہاں پر 26 27 تو ہے نہیں، 29 اور 28 میں لڑائی ہے۔ تو پہلے 29 ہوئے تھے تلنگانہ کو لے کر، لیکن اب کیا کیا ہے، کشمیر اور اس کو ملا کر کے ایک یہ بنا دیا ہے۔ اور اب ٹوٹل ہمارے پاس کیا ہے، اس سال اگر ہمارے پاس کوئی پیپر آتا ہے تو ہم 28 پر ٹک لگائیں گے کہ ہندوستان میں جو ہے 28 اسٹیٹ ہے۔ کوشچن نمبر 2 میں دیکھیے کہ کم مقعداً فی البرلمان الہندی، کہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں کتنے سیٹ ہیں۔ تو 543 سیٹ ہے، اس میں آئے گا سی 543، نمبر 1 میں ڈی، نمبر 2 میں سی 543۔ اطول نہر فی الہند، ہندوستان میں سب سے لمبا نہر، سب سے لمبی ندی کون سا ہے۔ تو یہ گنگا ندی ہے، گنگا، ٹھیک ہے، سی۔ اچھا، 4 نمبر چلتے ہیں، اول رئیس جمہوریت الہند، ہندوستان کا جو سب سے پہلا راشٹرپتی پریسیڈنٹ کون تھے۔ تو ڈاکٹر راجندر پرساد، یعنی کہ راجندر پرساد پہلے جو ہے فرسٹ تھے۔ اگر مسلم میں پوچھا جائے تو آپ بتائیں گے ذاکر حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین۔ اچھا، تحتفل الہند بالیوم الخمیس من شہر ستمبر، کیا رہا کہ یہ تحتفل الہند جو منایا جاتا ہے 5 ستمبر کو، وہ کون سا ہے۔ تو یہ ایام المدرسین، اے، آپشن نمبر اے۔ اکبر و ولایت الہند مساحتاً، رقبے جغرافیہ ایریا کے حساب سے ہندوستان کا اسٹیٹ جو کون سا ہے بڑا، تو وہ راجستھان ہے، 6 نمبر کا بی۔ 7 نمبر کا تقاؤ کوفت آجندہ، کوفت آجندہ جو ہے ایک پہاڑ، اور پہاڑ کے نیچے جو ہے نا وادی کی طرح جو ہے وہ ہے۔ تو یہ کوفت آجندہ ہے کہاں پر، تو اورنگ آباد ایک بہار میں ہے، ایک بمبئی میں ہے۔ تو یہ اورنگ آباد بمبئی والا ہے، کہ بمبئی میں اورنگ آباد میں جو ہے کیا ہے، یہ کوفت آجندہ ایک پہاڑ کے نیچے گھاٹی ہے، وادی ہے۔ یہ تعلق فریق لعبۃ الکرۃ الطائرہ، کرۃ الطائرہ مطلب والی بال، کرۃ القدم فٹ بال، اور کرۃ القدم فٹ بال، کرۃ الطائرہ والی بال، اور ایک آتا ہے کمیونسٹ۔ اچھا، اس کے بارے میں بتائیں گے، پہلے یہاں دیکھتے ہیں 8 نمبر میں کہ فریقۃ لعبۃ الکرۃ الطائرہ، یعنی والی بال میں کتنے لوگ شرکت کرتے ہیں، تو 6 لوگ کا، نمبر سی۔ اب دیکھتے ہیں 9 نمبر میں، یہ تعلق فریق لعبۃ کرۃ القدم، یہاں آ گیا فٹ بال والا۔ تو اس میں جو ہے فٹ بال ہو یا کرکٹ ہو، کتنا اس میں 11 کر کے ہیں، تو یہاں کوشچن نمبر آپشن نمبر بی۔ 10 نمبر عقیدہ کاس العالم لکرۃ القدم، جو فٹ بال گیم عالمی ورلڈ کپ فٹ بال جو ہے 2014 میں کس جگہ پر کھیلا گیا تھا، تو برازیل، یہاں پر سی۔ عقیدہ العاب کمونس للعام، تو یہ جو ہے کمونس ایک گیم کا نام ہے، جو ورلڈ کپ گیم ہے وہ کب 2014 میں کس جگہ پر، تو یہ مالیزیا ہے، 11 نمبر کا آپشن نمبر سی۔ منیہا وسام بھارت رتنا، بھارت رتنا جو ہے 2014 میں کس کو دیا گیا تھا، تو یہ سچن تندولکر کو، کوشچن آپشن نمبر بی۔ 13 نمبر ایو بلد مما یلی لا یقع فی قارۃ آسیہ، یہاں پر 4 ہے، الیابان، سنگاپور، چین اور مصر۔ تو جاپان، سنگاپور اور چین جو ہے ایشیا میں ہے، اور مصر جو ہے افریقہ میں ہے، تو اس لیے ایشیا میں مصر نہیں ہے، تو 13 نمبر کا آپشن نمبر بی۔ مدینہ کابل کس کی راجدھانی ہے، تو جو ہے افغانستان کی راجدھانی کابل ہے، اور ایران کی راجدھانی تہران ہے۔ اچھا، یہ
एक है लीन, अल इन लिखा रखा है लेकिन ये क्या है असल में लीन। ये लीन एक ही कंट्री में चलता है, सिर्फ जापान में। तो ये क्या है लीन सिर्फ जापान में ही चलता है। तो यहाँ लिखा है याबान यानी 15 नंबर का ए। या कहो बुर्ज एफल, बुर्ज एफल यानी बुर्ज जिसको कहते हैं एफल टावर, एफल टावर यानी बुर्ज एफल। तो ये कहाँ, ये फ्रांस में है। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आप चले जाएँ यका मकर मंज़मतुल मुत्तहिदा उम्मल मुत्तहिदा के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर, मकर मतलब हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर कहाँ पर है वाकई, तो ये न्यूयॉर्क। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ततमत्तउ बिल उज़ुवत दाइमा फी मजलिसिल अमन, मजलिसिल अमन में जो 5 लोग होते हैं। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 5 लोग, 5 दुआल यानी 5 कंट्री उसमें शामिल होते हैं मजलिसुल अमन में। अगर पूछे कि खाली उसमें खलीज दुआल अरबिया, खलीज दुआल अरबिया कहीं आएगा शायद कोई आगे कोई सवाल। खलीज दुआल अरबिया, खलीज, खलीज का नाम अगर है तो वहाँ पर 6, लेकिन अगर मजलिसुल अमन आए तो समझे कि आप 5। तो यहाँ पर है 18 नंबर में सी। अच्छा, वाक़िअतुल हर्बुल आलमी अल ऊला, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था वो किस साल के दरमियान हुआ था, तो वो यहाँ 19 नंबर का डी 1914 से 1918। अच्छा, दारे जलजल जो इमरुल कैस ने जब अपने महबूबा को वो अपने वाक़या पढ़ा होगा कि जिसमें वो सहेलियाँ मिल के सब नहा रही थी, तो ये पहुंच गए थे, कपड़ा छुपा दिए थे, तो आखिर उसको नंगा को उस तालाब से निकालना पड़ा। तो जो है ये अनीज़ा के बारे में है कि अनीज़ा जो है उसमें नहा रही थी, तो उसी पर जो है दारे जलजल उसी को कहते हैं जो उसमें वाक़या आया था इमरुल कैस के साथ। तो इसका जो है से माना क्या है गदीर यानी मबनी बिल्डिंग मंतका एरिया सुकून बाज़ार। तो ये जो है दार जलजल एक गदीर यानी गदीर तालाब, और दार जल किसका नाम है, तालाब का नाम है। तो यहाँ 20 नंबर का सी। अच्छा, ज़ुहैर बिन अबी सलमा इंतमा यंतमी इला कबीलती, इंतमा मतलब बिलोंग करना, ताल्लुक़ रखना। तो ये जो है बनी मुज़ैना 21 नंबर का डी से ये ताल्लुक़ रखता है। कौन, ज़ुहैर बिन अबी सलमा। अच्छा, यंतही अल असरुल उमवी, असरुल उमवी का इंतहा ख़ात्मा कब होता है, तो तातारियों ने जब उस पर हुकूमत की तो ख़ात्मा हो गया। लेकिन कब, ये 132 हिजरी में, 132 हिजरी में मुताबिक अगर लिया जाए अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से तो 750, 749 दे रखा है कहीं 750, तो 750 डाल देंगे, ये टिक लगा देंगे। यंतही असरुल अब्बासी, ये असर अब्बासी का कब है, तो यहाँ पर दे रखा है ईस्वी में, यानी ईद मिलाद में। तो ये 1258 में जो है असर अब्बासी हुकूमत का खात्मा हो जाता है। असर अब्बासी हुकूमत 1258 में। अगर पूछे कि अरबी मुताबिक तो 656, 656, 656। इब्नुल फारिज कहाँ से है, इब्नुल फारिज नहीं, इब्नुल फारिज इश्तिहारा। इब्नुल फारिज जो है किस चीज़ में मशहूर हुआ, वो क्या बोलते थे, गज़ल पढ़ते थे, मदाह करते थे, हिजा करते थे, या फिर तसाउफ़। तो पर इब्नुल फारिज जो है तसाउफ़ में मशहूर हुआ, तशब में मशहूर हुआ, तसाउफ़ पढ़ा करते थे। अच्छा, इब्न ज़ैदुन जो है कहाँ का, ये शोरा में से है। तो इब्न ज़ैदुन जो है उंदुलुस का शोरा में से है। तो यहाँ पर 25 का बी। इस तरह इब्नुल अमीद, इब्नुल अमीद किस चीज़ में, तो इसमें जो है उन्होंने बलागा भी लिखा है और रसाइल, लेकिन वो मशहूर किस चीज़ में, रसाइल में। तो 26 नंबर का भी बी। इस तरह मारो नक्काश, मारो नक्काश को अबुल मसराहिया यानी जो ड्रामा लिखते थे ना, मसराहिया ड्रामा लिखते थे, इसलिए उसको अबुल मसराहिया ने ड्रामे का बाप भी कहा गया। तो मारो नक्काशी यहाँ पर 27 नंबर का बी। उमर अबू रीशा, उमर अबू रीशा जो है सूरी शार यानी शाम से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए 28 नंबर का डी। नाज़िकुल मलाइका जो है इन्होंने सब काम मिस्र में किया है, लेकिन ये असल क्या है, मिन शोराए इराक़। तो नाजिल का मलाइका इराक़ से ताल्लुक़ रखती थी, इराक़ से है। तो 29 नंबर का ये। यंतमी अब्बास महमूद अल-अक्काद, अब्बास और महमूद का ताल्लुक़ किससे है, यहाँ पर जो है दीवान है 4-5 मदरज जैसे मदरसतुल दीवान, मदरसतुल बास, मवाल अहिया, मदरसत महजर और मदरसत आबोलो। तो आबोलो का जो है वो है अबू ज़ाकिर, अबू शादी ज़ाकिर, क्या है वो, अबू अहमद ज़की, अबू अहमद ज़की है। कौन है वो, अबू अहमद ज़की मदरसतुल आबोलो का है, आबोलो। ये जो है बी नंबर का। और मदरसतुल बास का है अब्बास महमूद अल-अक्काद, नहीं वो सॉरी, ये 30 नंबर का जो है यंतमी अब्बास महमूद अल-अक्काद क्या है, राबितुल कलामिया का जुबरान खलील जुबरान है। मदरसत दीवान का अब्बास महमूद अल-अक्काद है। और मदरसत आबोलो का है अबू अहमद, अबू शादी
इस तरह क्या है वो उसका नाम मुझे ज़बान में नहीं आ रहा। अबू अहमद शाकी, हाँ अबू अहमद शाकी नाम है उसका, अबू अहमद शाकी। कौन है? मदरसा अबूलकार। मदरसा बास का है उमर अबूरी शरीफ ऊपर पढ़ा महमूद सामी अल बारूदी, महमूद सामी अल बारूदी है। और ये जो है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन लगाएंगे सी, मदरसा दीवान का कौन है? अब्बास महमूद अल-अक्काद। अच्छा, फाजा नजीब महफूज जायज़त नावल आरा, जो अरबी अदब में इन्होंने नावल लिखा है या लिटरेचर किया है, तो इनको जो है अरबी लिटरेचर यानी अरबी अदब लिटरेचर जो मिला है उसको 1988 में। किसको? नजीब महफूज को। नजीब महफूज कहाँ का? मिस्र का है। अच्छा, युअद्दु महमूद सामिद अल बारूदी, देखो यहाँ पर आएगा रायत में बता दिया पहले ही सवाल का। तो 32 नंबर का जो यहाँ पर यह मदरसतुद दीवान सी नंबर का वो रायद है। कौन? महमूद सामिद अल बारूदी किसका है? ये 32 नंबर का महमूद सामी अल बारूदी किसका है? वो रायद मदरसतुल बास, और मदरसतुल बास को मदरसतुल एहिया भी कहती है। ये 32 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। मदीनत सुना, ये सुना जो है सना, कोई सुना पड़ता कोई सना, लेकिन असल क्या ये सना है। तो मदरसतुल सना जो किसकी राजधानी है? तो अमन की राजधानी सना है। उर्दून की राजधानी अम्मान है। बहरीन की राजधानी मनामा है। तुनस की राजधानी तुनासी है। तो इसमें 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अमलतुल इमारतुल अरबी अल मुत्तहिदा, जो इमारत अरब इमारत है, इसका करेंसी अमलतुल करेंसी क्या है? तो दिरहम है, दिरहम। तकाउ लीबिया फ़ी क़ारा, लीबिया जो है अफ्रीका में वाक़ है। तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। नुज़हतुल ख़वातिर किसकी है? नुज़हतुल ख़वातिर जो है यहाँ ऑप्शन नंबर बी का है। नुज़हतुल ख़वातिर अबुल हय अल हुसैनी की है। और शाउल उज्जतुल बालिगा है। और सुबहानुल मरजान जो है इसकी है, गोला मस्जिद अल बरगरामी की है। सैयद अबुल हसन अन-नदवी की कई किताब है, असक़ाफ़तुल हिंद इस तरह से। लेकिन अब्दुल्लाह हुसैनी की किताब है नुज़हतुल ख़वातिर। तबक़ातुश शोरा जो है इब्न क़ुतैबा किसकी है? तबक़ातुश शोरा। तबक़ातुश शोरा का दूसरा नाम जो है तबक़ातुल फ़ुहूलुश शोरा, ये इब्न सलाम अल जमी 37 नंबर का बी है। नज़रात और अबारात किसकी है? नज़रात और अबारात ये मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल मनफलूती की है। ऑप्शन नंबर डी, 38 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आइए जुमला में मयाली सही है। जो नीचे जुमला है 4 आपका ए बी सी डी का, तो इसमें से कौन सा जुमला आपका सही है? तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एक बात ध्यान में रखें कि हम जुमला को पहले सबसे पहले देखें जुमला फेलिया है इसमें क्या है। अगर जुमला फेलिया है तो उसका फ़ाइल कौन बन रहा है, उसका मफ़ूल कौन बन रहा है, तो फ़ौरन आप समझ जाएंगे कि हम फ़ाइल को क्या एराब देंगे और मनसूब को क्या एराब देंगे। तो जब आपके जहन में ये बात रहेगी तो आप फ़ौरन समझ सकते हैं कि ये जो है फ़ाइल और मफ़ूल है। तो यहाँ देखते हैं पहले कि ला युमदा नसीहता इल्लल मुखलिसीन, ला युमदा नसीहता इल्लल मुखलिसूना, ला युमदा नसीहता इल्ला मुखलिसीना। नंबर डी, ला युमदा नसीहता इल्ला मुखलिसीना। तो यहाँ पर आप डिसाइड करें कि पहले सिगा क्या है? मुज़ारा है, और मुज़ारा को हमेशा क्या चाहिए? नायब फ़ाइल चाहिए। नायब फ़ाइल क्या होता है? मरफ़ू होता है। तो यहाँ पर नायब फ़ाइल, तो ला युज़दा नसीहता इल्लल मुखलिसूना, ला युज़दा नसीहता इल्ला मुखलिसन, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी नायब फ़ाइल नहीं है। ला युज़दा नसीहतु इल्लल मुखलिसीना, लेकिन यह जो है यहाँ पर भी नहीं, यह भी नहीं होगा। तो सवाल इसका जो है जवाब क्या होगा? जवाब नंबर 39 का सी होगा, ला युद्दा नसीहत इल्लल मुखलिसूना, यानी कि नसीहत को शुमार नहीं किया जाता, या फिर क्या ला युमदा या युद्दा है, मेरे को दिख नहीं रहा है, खैर। लेकिन ये जो है 29 नंबर का सी है। आइए जुमला में मायात या सही है, ये भी वही कह रहा है कि जुमला कौन सा सही है। तो इस तरह देखिए, इश्तरे तो 30 अशरता किताबन, इश्तरे तो 30 अशरत किताबन, इश्तरे तो 30 अशरत किताबन, इश्तरे तो मा 30 अशर किताबन, इश्तरे तो 30 अशर किताबन। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको कायदा बता देता हूँ कि 1 और 2 का कोई कायदा नहीं होता आदद मादद में, लेकिन 3 से लेकर 10 तक अगर मादूद मुज़क्कर होता है तो अदद को हम मुअन्नस लाएंगे, यानी मुखालिफ लाएंगे। और इसमें 3 कायदा है, एक मुखालिफ लाएंगे, और दूसरा जमा लाएंगे, तीसरा उसको हमेशा मनसूब रखेंगे। लेकिन यहाँ पर है 30 आशरा। अब 11, 12 ध्यान रखें दोस्तों, 11,
12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72 और 81, 82, 91 और 92। जितना इकाई और दाएं वाला है, एक दो वाला, दाएं के बाद जो आगे एक और दो लगाता है ना, जैसे 11, 12, 21, 22, 31, तो ये हमेशा जो उसका मादुद होगा, यानी हम जिस चीज़ को गिनेंगे, हमारे पास 10 किताब है, कितना है 10 किताब है, लेकिन हम उसको 10 जो लगाते हैं यहाँ पर 10, तो ये हमारा क्या है, ये अदद है। और हम जो किताब को गिन रहे हैं, किताब मादूद है। तो जब हम 10, 11 और 22, 21, 22 में जब लाएंगे तो मादूद जो हमारा किताब हो रहा है यहाँ पर, तो किताब को हम क्या करेंगे, मादूद बनाएंगे। और अगर किताब हमारा यहाँ मुज़क्कर है तो हम क्या करेंगे, इशरूना से पहले या आशरा से पहले हम क्या लगाएंगे, जो इकाई दाएं का हम वो लगाएंगे, तो वो हम इसके मुवाफिक लगाएंगे। यानी किताब मुज़क्कर है तो हम इकाई को भी मुज़क्कर लगाएंगे। तो और लेकिन हाँ, उसके बाद 11, 12 के बाद 13 से लेके आगे तक बताता हूँ कि 13 से लेके 19 तक, 13 से लेके 19 तक, यानी 20 से पहले 13 से लेके 19 तक, 23 से लेके 29 तक, 33 से लेके 39 तक, 43 से लेके 49 तक, 53 से लेके 59 तक, और 53 से लेके 59 तक, 63 से 69 तक, और 73 से 79 तक, और 83 से 89 तक, और 93 से 99 तक। जितना भी होगा हम मादूद बता चुके हैं कि मादूद का मुखालिफ लाएंगे। तो यहाँ पर 40 नंबर देखें कि इश्तरे तो तिस्सा अशरता किताबन, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इश्तरे तो तिस्सा अशरता किताबन, हमने 19 किताबें ख़रीदी। तो यहाँ पर 30 क्या है, मुज़क्कर है, किताब मुज़क्कर है, तो हम क्या करेंगे, 13 से लेकर 19 तक, 23 से 29 तक, 33 से 39 तक, और इस तरह से हर 3 के बाद 9 तक का जो इकाई दाईं के ऊपर होता है हम मुज़क्कर लाएंगे, यानी मादूद का मुआफिक लाएंगे। अगर मादूद मुअन्नस होगा तो मुअन्नस लाएंगे, लेकिन बीच में जो अशरा है हम उसको उसके ख़िलाफ़ लाएंगे मादूद के, यानी किताब मुज़क्कर है, अशरा मुअन्नस है, तो हम इसका मुखालिफ ही लाएंगे। अगर ये किताब की जगह पर कोई किताबतन हो जाता तो हम क्या करते हैं, अशरा लाते। तो यहाँ और एक अशरा और अशरा क्या पढ़ें, अगर ये मुअन्नस का लफ्ज़ है, मुअन्नस का लफ्ज़ है, तो हम अशरा सिन पर साकिन पढ़ेंगे, जज़म पढ़ेंगे। और अगर मुज़क्कर है इसका मादूद किताब जिसमें, तो और ये ता लगा हुआ है तो हम अशरा पढ़ेंगे। और अगर हम अशरा पढ़ते हैं तो अशरा पढ़ते, अगर ता नहीं होता तो। चले देखते हैं कि 40 नंबर का ए। तो हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट ए का ख़त्म हो गया। पार्ट बी में कुछ ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस्तिख़दामिल कलिमातिल तालिया फिल जुमालिल आलिया, यानी कि मदरजल जुमलों को अरबी में इस्तेमाल करो। तो अल हुकूमतुल इतलाफ़ियत, मतलब गठबंधन वाला जो हुकूमत होती है वो हुकूमत है। अलवज़ुल अमनी, अमनी हालत। अलमुराक़बत अलल हुदूद, जो बॉर्डर पर जो प्रोटेक्टर होते हैं या फिर बचाने वाले, महफूज करने वाले होते हैं, जैसे हमारे फौजी भाई साहब हैं वो। मकर उम्मतुल मुत्तहिदा, जो हम बता दें कि उम्मुल मुत्तहिदा के जो हेड क्वार्टर कहाँ, तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। और सुक़ुल असम, शेयर मार्केट। मशारुल इस्कान, जो घर के अंदर रहकर कुछ काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसको कहते हैं। अलमिनतका, एरिया जानते हैं। अकालिम जो है टेरिटरीज़ को कहते हैं। टेरिटरीज़ मतलब जो है हमारे इंडिया में 8 टेरिटरीज़ है और 28 स्टेट है। तो इकलिम एक मंतका, इलाका और जगह को खित्ता को कहते हैं। मुनाज़ातुल मदनिया, एक जो है इंजॉइंग सिटी बोलेंगे थे यहाँ पर। हरकतुल मुरूर, ट्रैफिक को कहते हैं। तो इस जुमलों को आपको बनाने हैं। यहाँ पर आपका है 42 नंबर में कि तर्जुमा इबारत तालिया इला इंग्लिशिया, जो नीचे इबारत है, फ़िक्रे है, उसको इंग्लिश में तर्जुमा करें, आप तो कर लेंगे। उसके बाद आप जो है इंग्लिश में यहाँ दे रखा है तर्जुमा फ़िक्रत तालिया इला लुग़तिल अरबिय्या, वहाँ पर अरबी इंग्लिश में करना था, यहाँ पर आपको अरबी में करनी है। उसके बाद ये है शक्ल इबारत, तो आप तर्जुमा तो हमसे अच्छा बेहतर कर लेंगे, मैं आपको सिर्फ इबारत पढ़ के सुना देता हूँ कि वज़ाफ़त सहीफ़तु अन अला अरुबा आइज़न इत्तिबाउ इजराआती आजलतिन लिहिमायतिल मुआतिनीना मिसला तौसीक़ ताआवुनिल अमनी फ़ी मुकाफ़ातिल इरहाबी व तजरीमु अन उनशुतत सफ़र इलल ख़ारिजी लिअग़राज़ इरहाबिया व तशदीदुल इजराआतिल अमानियती फ़िल मतारात व महत्ततिल क़ितारी वल मित्री वलदा शुबक़ातिल सिकाकिल हदीदियती बैनल मुदनी
कमा नशति सहीफ़तु मक़ाल लिलकातिबी ज्योतिषिना बैतनर तसाअल फ़ीहि अन मदा इम्कानियति सुमुद अरुबा अमामा मौजातिल इरहाबिल्लती तहताजुल अदीदु मिन दुअलिल क़ारती। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये 17 का सवाल है, ये भी वही है। इसमें कुछ पहचान में नहीं आ रहा ज़्यादा से, लेकिन मैं आपको क्या बताता। तो इसमें जो पहला नंबर है समाकुल जोग्राफिया तो अदुल हिंद, हिंदुस्तान को मसाहत रकबे के एतबार से हिंदुस्तान कितने नंबर पे आता है। तो एक नंबर पे क्या है, रसिया है, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या है हमारा कनाडा है, लेकिन 7वें नंबर पे हिंदुस्तान है रकबे के एतबार से। और आबादी के एतबार से हमारा हिंदुस्तान 2 नंबर पे है, चीन 1 नंबर पे है। अच्छा, हिंदुस्तान का जो है वो है अल हैवानुल वतनी नेशनल एनिमल, तो वो नमेर टाइगर है। सबसे ऊंची जब अरफ और जबाल फिर हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा ऊंचा जो पहाड़ है वो हिमालय है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल जो है पिछले से वापस लौट कर यहीं आ गया है। तो इस तरीके से ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कुछ फ़ायदा उठाएं। मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, वीडियो हमारी लंबी हो रही है इसलिए मैं इतना ही पर काफ़ी है। फिर आज एग्ज़ाम है और आप लोग बहुत चीज़ पढ़े हैं, मैं ज़्यादा टाइम न लूँगा। अल्लाह ताला से दुआ कर अल्लाह ताला हम तमाम सबको इस एग्ज़ाम में पास करें, आमीन।